हेलो। नमस्कार अर्पिता हाय जी। मनीष। हाय। कैसे आप? हाँ, मैं एकदम ठीक हूँ। सो अर्पिता जी, वेलकम टू दिस unique series. I had thought, I and Malvika thought at मनीष, some time. Yes. योर वॉइस इज क्रैकिंग। Okay, let's try. कैन यू हियर मी क्लियरली? Yeah, I can hear you very clearly. Are you able to hear me? नो, आई कांट। I'm still getting a breaking voice. Really? Okay, let me try. See me clearly? I'm just checking my network. Is it okay? Yeah, mine is. Are you able to hear me now? Not exactly. Not able to hear me yet? Hello? Hello. Yes, are you able to Yeah, hear I me can now? hear you. Oh, Better, great, better, great, better, great. better, Okay, wow. better, So, bit better. yes. So, welcome to this unique series, Arpita ji. And I and Malvika sometime back thought that the parents all parents, while in the process of uh, their journey of having children, developing, growing, maybe sometimes falling, would always have their own stories. And we believe that these stories would also lead to some kind of inspiration, some resilience, some coping that they would have already experienced. They would be constantly doing that as we all are growing up, but we believe that there is something that they can give back. They can give back to not just children and parents of special needs community, but I think they can actually give back to all the parents, whoever are there, wherever they are. They can actually give back to all parents. So, having with that thought, welcome Arpita ji one more time, and I would like to start with asking you, how was can you tell me something about your childhood? How was the environment? What kind of a situation was there when you were a child? You are asking about my childhood, Manish. Am I right? Yes, 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 yes. Your social life, your Yes. environment when you were a child. Okay. So, from where I should begin? Okay, I am from Uttar Pradesh, UP, from Muradabad, and it's a small a small town. Or I born and brought up there. I was second child in my family. I have a elder brother. I have a younger sister, and I am from a family who has a rural background as well as a city background. But yes, after मैं बात कर रही हूँ 48 years पुरानी, तो if you कम से कम एक उस समय से उसके हिसाब से वहां पर जो जिस तरीके के थॉट प्रोसेस थे और जिस माहौल में पली बड़ी हूँ वहाँ
फ्रीडम थी, लेकिन एक लिमिटेड फ्रीडम थी. इट वाज रेस्ट्रिक्टेड फ्रीडम. इट वाज नॉट अ फ्रीडम where you got certain things, but you will not have exercise. Like you can't say what you are feeling. You can choose certain things, but you cannot choose everything. Like your yeah, like your siblings who are male. So I'm from that kind of a background where I got certain rights, but not I could not get every right of mine as a child in the family, and I didn't had ever say at every place or in every incident or every occasion. So and I am being the elder girl, I had more responsibilities in terms of family because I was the eldest one in the whole family. So I was like, I shoulder many responsibilities as a child as well. So that's how my life Of course. was. So there was a rejection as a girl, but there was a restriction as a girl. Yeah. So there were two things coexisting probably. The Sorry, didn't elder get you. Can girl, you elder repeat? daughter. Yeah, I said you said that there was a sense of rejection, but also there was a sense of respect and responsibility as well. We are waiting for Arpita ji to join back. I think her internet, her connection might be a little glitchy. We are waiting for her to join. She got disconnected. Oh, waiting for her to join. I have
requested Arpita ji to join back. We are waiting for her to join. Arpita ji is in an area called Palwal, and I think Palwal may or may not have a good internet or technical support. Let's hope that we connect with Arpita ji again. I'm still waiting for her to join. She seems to be there, but she seems to have some difficulties in joining the live. Number? Hello. Yeah, hi. Good to have you back. Manish, can you hear me? I don't know what is the Yes, I problem. can. There is some. I can hear you. I can hear you Okay. very well. I can Okay. hear you very So you well. asked. Yes. No, Yes. I So am I still struggling to hear you clearly. There are certain. I don't know what is the problem. I don't know, but I can hear you. Don't worry. You speak. Sorry. so can you give us some insights about your life post education and into your family life? Okay. So education and family. So Yeah. as I shared, I have an elder brother who is in IT sector. Now, just now he resigned and he gone back to the agriculture because we have that land and he is trying to go into agriculture as a business person, looking at agriculture and organic farming. I have a younger sister. She's into media, NDTV, and she lives in Noida. And both are married. Both have two sons. I am a single mom of my darling son Nirbhay, and Nirbhay is my second child. Before I lost her after her operation. She also took birth with certain disability, which was physical, and she underwent a surgery at the age of 3 months. And I lost her, and Nirbhay is my second child. So this is all about the family structure. Now come to the education. So I must say that being a girl from that small town, my father always wanted me to be the teacher because that is the safe job and a secure job. I didn't know what I wanted at that time, but I definitely wanted to be a dancer. I love dancing and I wanted to learn Bharatanatyam, but I could not learn at that because that. So I could not learn Bharatanatyam. I am now learning that. So I am fulfilling my dream now. And education, I did my graduation in biology, and then I did regional B.Ed, then I did MBA, then I didn't do anything after that. I got married during my MBA, and I got my first child, and my life take turn after that. And bas uske baad se disability sector is the sector. Then when I get my son Nirbhay, then then it was a most life turn taking event, I must say, because many things happened at the same time. One, I broke down as a mother. See why it happened with me. I broke down. My family broke down.
मतलब I was not in a very happy marriage. It was already abusive marriage, but that was the nail at the of the coffin, last nail of the coffin. After Nirbhaya, I had to took a decision, and then it was like, what I will do now? What is the future? And somehow, when I was going to some institute, I used to go there as a parent. I got a courage to do the course. I was get inspired by the people over there. They pushed me to very hard. Actually, they pushed me very hard to do the course, and I did the course. So I become a special educator after Nirbhaya. Nirbhaya was at least, I think, 2.5 or 3 years when I was doing that course. I studied. It was not easy, but to pass with first division. So this is all about my education. उसके बाद से मनीष जो भी मैं पढ़ रही हूँ, जो भी कुछ कर रही हूँ, it's all in this sector. It's related to this sector. अब ये मेरे खून में आ गया है. This everything is related to this, and I am passionate about. So I try to learn as much as possible because Nirbhay. Hello. Hello. Yes. हाँ, Manish. हाँ. So that's all about my education and family. Yes, correct. So I like you said that there were always some struggles in the family, in your early married life itself, and then you had a child who actually had special needs. So can you give us some insights on how did you take it when you realized that the child has special needs, and how did you deal with it? How did I? Sorry, I didn't get you. Can you repeat the question? I got the. How did you take it? What did you tell yourself? What did you say to yourself when you realized that your child has special needs? Actually, Manish, my daughter, who was just 3 months old, once she died, after her death, I went for genetic counseling. And I came to know that my son, my ex-husband was a carrier for some genetic abnormalities, and we may get a child with disability, but doctors gave us, a thought कि 50-50 है. So एक तो ये हुआ था. And after all these things happened, जब निर्भय का हुआ, निर्भय का diagnosis भी उसी टाइम पे हुआ कि born with a multiple disability, and Nirbhay born with a multiple disability. Also, he has a rare neurometabolic disorder, which is known as infantile deafness, which was not even getting diagnosis at that time in India. अभी तो यहाँ diagnosis 2-3 सालों से हो रहा है, पर उससे पहले इंडिया में diagnosis भी नहीं था. तो वो भी एक चैलेंज था मेरे सामने. बट जब मैंने घर छोड़ा था और जब मैंने कोर्स शुरू किया था, मेरे को जो इंस्पिरेशन और जो भी यू कैन से कि फ्यूल फॉर सर्वाइवल मिलता था, वो निर्भय से मिलता था. सर्वाइवल फॉर मी. और जब मैं जैसे जैसे इस फील्ड में घुसती जा रही थी धीरे धीरे, देन माई स्टूडेंट्स वर फ्यूल फॉर सर्वाइवल फॉर मी. तो अगर मैं एक तरफ से गिरती थी तो दूसरी तरफ से संभल जाती थी. तो देयर वर मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जो आदि के टाइम के स्टूडेंट थे. कोई ग्रेजुएशन कर चुके हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हैं, जॉब्स कर रहे हैं. वन ऑफ माय स्टूडेंट हु हैज SMA type 1, spinal muscular atrophy type 1, who is in New Zealand writing books. So I feel very thrilled. तो वो लोग मेरे फ्यूल फॉर सर्वाइवल थे.
उसके अलावा फ्यूल फॉर सर्वाइवल थे माय फ्रेंड्स who never left me alone in the most difficult times of mine. So these are few things just जो मुझे हमेशा जीने के लिए उकसाती रहती थी. प्लस निर्भय बहुत क्रिटिकल स्टेजेस में आ जाता था. He used to go to एम्स एज if मतलब हम लोग एम्स में ही ज्यादा रहते थे. फर्स्ट 7 years of his life हमने हमारी जिंदगी एम्स में ज्यादा बीती है देन कहीं और. We used to live and वो हमेशा बाहर आ जाता था. जब डॉक्टर कहते थे बस ये तो लास्ट है, ये नहीं बचेगा, वो भाई सब मुस्कुराते हुए बाहर आ जाते थे. तो दिस वाज ऑल दीज वर वेरी ऑल दीज इंसिडेंट्स, ऑल दोज सिचुएशंस ब्रेक डाउन भी करती थी पर फिर खड़ा भी कर देती. दो एट दैट टाइम आज बात करना बहुत आसान लग रहा है मुझे इन बातों पे, इन चीजों को आज मैं after 48 years of my life, if I look back at my life, I found it everything happened for a reason. Yes, उस समय रोना भी होता था, सब कुछ होता था, breakdowns भी होते थे, depressions भी आते थे, and I have tried to give up my life as well. पर कोई ना कोई सब, especially निर्भय never allow me to break down like that. That's amazing. So those were the fuel for life. Sure. And when you had these turmoils going on, you know, in the marriage, in the parenting side, probably in having a child, and in you entering into the disability field, are there any experiences that you would like to share about? Are there any experiences that you would like to share? Yeah. Can you repeat your question? Are there any experiences that you would like to share about family and community response? Eight minutes. I think I still didn't get. I read your question. I'm sorry if your voice got break again. So I was asking, are you able to hear me? I was asking you, what was the response of the family and community? Any experiences? Family and community around you. Yeah, family and community around you. Okay. The family support was there and was not there. It was both ways. There are certain areas जहाँ family थी. There are certain areas जहाँ family नहीं थी. So if I say they were not supporting in my decision, because my decisions were more in the favor of Nirbhay than anybody else and than anything else. And whereas my parents were more of opinion that I should think about my life first, where I was not thinking about my life at that time. Then the other thing was the financial aspect. That was also I was looking after majorly. My mom tried to help me out as in when she could within her capacities, but not much. So I was in the hospital, she was there to support, and all those things were there. So it was mix of things. They could support in certain aspects, but they were also not very happy with many of my decisions. Like I got the job in government school as I was a normal B.Ed as well, and I left and I joined special ed. The salary package was there was a huge difference in salary package. So they were like, I'm wasting my life. और उसके लिए मैं आज तक सुनती हूँ कि वो सिक्योर जॉब थी, सेफ जॉब थी, अब तक तुम ये बन गई होती, इतना कमा लिया होता और सेफ आराम से घर में रहती. आज तक सुनती हूँ. बट ठीक है, उनकी सोच ये थी कि उनका बच्चा सेफ रहे. वो अपने बच्चे यानी मेरे बारे में सोच रहे थे और मैं अपने बच्चे यानी निर्भय के बारे में सोच रही थी. तो हम दोनों ही अपनी जगह सही थे, गलत कोई नहीं था. Only thing the situations were like this कि हम दोनों एक दूसरे को सुनने को तैयार नहीं थे.
So and I'm labeled childhood. So so I am okay with that tag also now. I am happy with that tag. कि ठीक है जिद्दी हो कोई बात नहीं चलेगा. So that's the thing. Yeah, mindset And of other security सही सही लिखा है. Mindset of security वो हर पेरेंट की होती है, and I think गर्ल्स को लेकर ज्यादा होती है. and other than the family, community से कैसा response मिला आपको? Sorry? Other than the family, other than the family, Other than family कहाँ से support मिला? Other than family, I have a huge network of friends. That is one part. वो friend circle मेरा जो स्कूल के टाइम के फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे कॉलेज टाइम के फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे उसके बाद के फ्रेंड्स हैं, कुछ मेरे पेरेंट्स ग्रुप के फ्रेंड्स हैं, कुछ आप जैसे प्रोफेशनल्स हैं जो फ्रेंड्स हैं. So there are various stages के अलग अलग तरीके के फ्रेंड्स हैं. तो जब भी मुझे जरूरत होती है, लाइक आज की तारीख में अगर मुझे थेरेपी रिलेटेड कुछ पूछना है, आई कैन कॉल मनीष समदानी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. So that's how I know that. So that's how I have a friend circle everywhere, and I'm lucky in that. I'm very 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 lucky in that. कि मेरे को कभी भी किसी भी मुकाम पर जब भी जरूरत पड़ी, there are someone who is there with me, standing behind me, standing beside me. लोगों ने मुझे गिरने नहीं दिया. So I'm thankful to the God for giving me so many life, so many I cannot count. लोग कहते हैं कि बेस्ट फ्रेंड्स बहुत कम होते हैं और एक बचपन में ही बनते हैं, पर मनीष बिलीव मी, मेरे आज भी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स बनते हैं जो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स बनते हैं. They are very close. So there are various people, and across age. I have a friend. Youngest friend is I think he's 25, 26, and oldest friend is 88. I'm sure it has to do something with your own personality, with the way that you are, with the way that you are somehow a very friendly person who comes across as a friend, as a friend much more than anything else. I was not like that earlier. Okay. I was very shy in my childhood. Okay. How did that happen? How did the transformation happen? This transformation happens again thanks to Nirbhay. Thanks to my situation. When you are alone in your life and you have to do everything on your own, you know there is no one, there is nothing, then you have to learn to swim. आपको नदी में छोड़ दिया गया है और धाराएं बह रही हैं, अब आपको तैरना तो सीखना ही है ना. तो आप क्या करोगे? आपको तैरना सीखना है, आपको अकेले आगे बढ़ना है. अकेले आगे बढ़ने के लिए भी सपोर्ट सिस्टम चाहिए. आप कहने को अकेले होते हो, बट एक्चुअली कोई भी अकेला आगे नहीं बढ़ पाता. आई बिलीव सो, एंड आई रियलाइज वन थिंग वेरी क्लियरली इन माई लाइफ कि देयर आर ऑलवेज अ क्रॉस रोड. या तो आप कर लो या मर जाओ. मर गए, पीछे छूट गया, लेकिन करोगे देन अगेन देयर इज अ क्रॉस रोड. यू आइदर डू इट लाइफ. मैंने रोके करके देखा, अकेले थी, हंस के करके देखा, बहुत सारे लोग मिल गए. तो मैंने कहा यार ये तरीका है ना, हंस के करो. देयर आर सो मेनी हैंड ऑन हू आर देयर टू सपोर्ट यू. So that's how the transformation happened. वो बेचारी वाली स्थिति से सेल्फ करेजियस वाली स्थिति में आने में टाइम तो लगा, लेकिन आ गए. टाइम लगता है लेकिन आ गए. What makes Arpita ji keep going? What is it that makes you keep going? What is it that keeps you keep going? What is that thing which keep me working? You are asking that? Yes. Yeah. I'm sorry, I'm repeating the question because I'm getting a broken voice. So what is the thing which keep me working? Good question, Manish. Every time there was a different thing. When I joined Adi as a parent, तब निर्भय का वेल विशिंग, निर्भय ठीक हो जाए, निर्भय इम्प्रूव हो जाए, ये था जो मैं वर्क कर रही थी.
देन वो निर्भय के साथ साथ मेरे बाकी स्टूडेंट्स पे शिफ्ट हो गया, उनकी वैल्यूएशन आ गई, उनकी पढ़ाई लिखाई आई गई. I was the class teacher of and I was the class teacher of always two groups. One was second और one was third. Then वही ग्रुप मेरे आगे बढ़ता रहा. So I was always teaching two groups together. बड़ा मजा आता था. फिर उसके बाद थोड़ा सा चेंज हुआ कि पर तब भी मैंने अपनी लाइफ के लिए ना फिर एक गोल बना लिया कि मुझे कहाँ पहुंचना है इस फील्ड में कहो, या मुझे अपने लिए पर्सनल गोल. अर्पिता यादव अपने आप को कहाँ देखना चाहती है, मैंने वो गोल्स अपने लिए बनाने शुरू किए. फिर तो मेरे को जो कीप मी वर्किंग, दो चीजें हैं. एक मेरे स्टूडेंट या मेरे पेरेंट्स जिनके साथ मैं डायरेक्टली इन टच में हूँ, जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं. दूसरा है कि मेरा खुद का गोल, मेरे लिए मैं अपने आप से क्या चाहती हूँ, वो ये दो चीजें वर्क करती है. तो उसमें स्पेशली जो मैं स्टूडेंट्स की बात कर रही थी, तो पहले वो स्टूडेंट्स मेरे को करते थे. फिर मैं जब मैंने अपना गोल अचीव करना चाह रहा कि क्लास टीचर तो हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब प्रिंसिपल बनना चाहिए ना अपने को. तो फिर वो गोल हो गया मेरा पर्सनल गोल, प्लस वो ऑर्गेनाइजेशन हो गई जिसके लेके अब इसको टॉप में पहुंचाना है. फिर उसके बाद ये हुआ कि चलो ये सेक्टर तो कर लिया बहुत सारा, अब कुछ और करना चाहिए. तो लर्निंग डिसेबिलिटी में कि ये वाला मेरा दिल के करीब हिस्सा है, इसको छूना चाहिए, इसके साथ कुछ करना चाहिए. तो उसमें जान लगा डाली कि बिल्कुल जहाँ उस इंस्टीट्यूट में झाड़ू भी लगाई है, पोछा भी लगाया है, दरवाजे भी खोले हैं और खुद अकेले बैठे हैं पूरे कई महीने. एंड देन अब उसको एक स्कूल के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया. फिर उसके बाद आया कि अब क्या करना चाहिए. निर्भय के गोल क्योंकि साथ साथ चल रहे हैं. निर्भय के गोल क्या थे पहले, कि निर्भय किसी तरह सरवाइव कर जाए, निर्भय बीमार पड़ना बंद हो जाए, फिर निर्भय चलना शुरू हो जाए, फिर निर्भय टॉयलेट ट्रेंड हो जाए. निर्भय ने 7 साल में चलना शुरू किया, फिर निर्भय टॉयलेट ट्रेंड हो जाए, 15 साल में टॉयलेट ट्रेंड हुआ है. फिर निर्भय अच्छा एपिलेप्सी बंद हो गई, अच्छा अब ये खत्म हो जाए, अब सब वो खत्म हो जाए, उसका रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा रुक जाए, उसका सेंसरी इश्यूज ठीक हो जाए, उसके बिहेवियर चैलेंजेस ठीक हो जाए, उसका किडनी ठीक फंक्शन करने लगे, उसका हार्ट ठीक फंक्शन करने लगे. तो ना उसके साथ साथ गोल्स चल ही रहे थे, वो हर घड़ी हर समय चल रहे थे. तो निर्भय की तो उन पे फोकस चल रहा था. प्लस एक जिद अंदर बैठ गई थी कि निर्भय अब जब आया है तो ये ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, क्योंकि डॉक्टर्स ने तो कह दिया था ही विल नॉट सर्वाइव एंड ही विल डाई. तो नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता. देयर आर वे. तो उसकी फिर डाइट पे, फिर रिसर्च उस पे चली हुई. तो वो मुझे कीप मी मूव, वो कहता है ना कीप मी वर्किंग रखेगा. फिर निर्भय के साथ जितने भी एक्सपेरिमेंट किए वो सारे सक्सेसफुल हुए. तो और स्टूडेंट्स के साथ किया, दैट वाज आल्सो कीप मी अलाइव. तो देयर वर मल्टीपल एस्पेक्ट्स, इट्स नॉट वन एस्पेक्ट. पर हाँ, मोटा तौर पे बताओ तो मेरे स्टूडेंट्स, निर्भय और माई ओन गोल, पर्सनल गोल क्या है कि अब क्या करना है. तो फिर इंडिपेंडेंट लिविंग और व्हाट आफ्टर अस, ये मुझे बहुत 10 साल से क्वेश्चन दिमाग में हॉन्ट कर रहा था. व्हाट आफ्टर अस टुक मी हियर एट शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट पलवल. क्योंकि जो मैं करना चाहती हूँ, जिस वर्क मैं करना चाहती हूँ, वो यहाँ मुझे दिखा. तो मेरे को लगा अब मुझे यहाँ शिफ्ट हो जाना चाहिए, फॉर मी एंड फॉर निर्भय बोथ. So this is, every time there is a new challenge and every time there is a new demand from Nirbhay, for Nirbhay's life and from my own life. That keeps me working, I guess. So आपने जो गोल्स की बात की, उसमें केबीसी कब उस गोल में एंटर हुआ और कैसे रियलाइज हुआ? Can you repeat, please? I'm sorry. I have to ask. आपने गोल्स की बात की, तो आई वॉज आस्किंग अबाउट केबीसी. वॉज इट अ गोल? KBC. Yeah, you are asking about KBC, हाँ. So KBC में मैंने क्यों किया, KBC में क्यों गई? You mean to say this? Yeah. KBC क्यों हुआ, KBC में क्यों गई? Actually, Manish, last year 2018, Nirbhay's report came normal. Infantile FSM की report normal आ गई. He's out of it. That means he's out of death threat. So that was one victory I had. And during the same time, I think KBC का प्रमोशन आ रहा था और कुछ आ रहा था, कुछ एक एड दिख रही थी. एंड मैं ये पूरा, और उस पता नहीं क्यों मैंने 2018 में लगातार पूरा सीजन देखा. उससे पहले मैंने कभी एक आध एपिसोड देख लिया, ये हो गया. कभी टाइम भी नहीं मिलता था, कभी कुछ सिचुएशंस नहीं होती थी. टीवी भी नहीं रखा था मैंने बहुत साल अपने घर में एक्चुअली. निर्भय के मतलब मुझे लगता था कि निर्भय को मैं उन सब चीजों से दूर रखूं जो उसको हार्म पहुंचा सकती.
तो मैंने कुछ देखती रही, पूरा सीजन देखा और आई रियलाइज यार हमारे सेक्टर के बारे में कोई बात नहीं करता। आई हैव नॉट सीन। फिर मैंने रिसर्च मारी कि पिछले किस सीजन में डिसेबिलिटी के बारे में बात हुई है। आई रियलाइज कि नहीं हुई है। कोई एक आध बंदा कोई आ गया, कोई विजुअल इम्पेयरमेंट या कोई फिजिकली चैलेंज, वो सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा है। दैट इज ओके, दैट प्लेटफॉर्म इज देयर फॉर दैट ऑल्सो। बट मुझे लग रहा था कुछ तो होना चाहिए, कुछ तो करना चाहिए। और मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं मैं मैनिफेस्टर हूँ, तो मैंने अपनी उसी पावर का यूज किया, यू कैन से दैट। एंड मैंने कहा कि नहीं, अब मुझे केबीसी में जाना है एंड आई हैव टू टॉक अबाउट दिस सेक्टर, चाहे जो हो जाए। मुझे इस बारे में बात तो करनी है, क्योंकि वो मंच एक ऐसा है जहां से आप एक साथ करोड़ों लोगों तक पहुंच सकते हो। राजस्थान का आइडिया मैं बताती हूँ। जब मैं राजस्थान गई थी मनीष, और मैं दिल्ली से गई थी, तो पीछे आ गई। और इतने साल वहां रहने के बावजूद भी आज भी, तब मैं जयपुर की बात कर रही हूँ जब मुझे लगा था क्लोज टू दिल्ली आ गया है, लेकिन आसपास के 100 किलोमीटर दूर के इलाके में आज भी वही हाल है। अभी मैं यहाँ हरियाणा में हूँ, यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, जो शौर्य फाउंडेशन ट्रस्ट बना हुआ है, तो मैं अभी भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो मुझे वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा लगा था कि उसको हर कोई देखता है, हर स्टेटा का व्यक्ति देखता है। So let me use that platform for the cause. So that's why it happened. मेहनत बहुत लगी, लंबी जर्नी थी, और आई रिमेम्बर वो दिन गर्मी में हम पूरे लाइन में खड़े हुए। जो दिखाते हैं आप लोगों को वो एक्चुअली में होता है। आप पूरे दिन लाइन में लगते हो, आप बहुत सारे अलग अलग इम्तिहानों से गुजरते हो, आपके बहुत सारे विजुअल, ऑडिटरी, पता नहीं किस, और राइटिंग वाले टेस्ट होते हैं। इट्स नॉट इजी। पर मुझे ये था मैं पहुंच गई हूँ। मतलब मैंने जिस दिन वो अपना ऑडिशन दे दिया था, उस दिन मैंने कह दिया था मेरी कॉल आएगी ही आएगी। तो दैट्स हाउ आई रीच देयर। और मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे क्या बात करनी है। कई बार उस एपिसोड में ऐसा हुआ कि मेरी पर्सनल लाइफ पे ज्यादा जहां फोकस होता था, आई वाज लाइक नहीं, मुझे पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करनी, मुझे कॉज के बारे में बात करनी। तो आई चूज दैट प्लेटफॉर्म टू टॉक अबाउट द कॉज with clear intention. Yeah, I mean, yeah, you by that kind of a thing, you actually became an ambassador of all disability related stakeholders. Can you repeat, please? I didn't get you. Yeah. So I'm sorry. There is some problem with this. Yeah, I'm able to hear you partially. You can try without the headphones, I would say. Without the headphones, if you try, I think it might work as a trick. Okay. Now tell me. Are you able to hear me better? No. No? Okay. I thought it might play as a trick if you try without the headphones. So I'm better with hands free. So let me use hands free. Sure. I think you can write your question. Yeah, sure. Anyways, so any challenges that you would like to talk about from the community side? Challenge from the community, many challenges बनी आज भी हैं और हमेशा से फेस किया। मेरे पास मल्टीपल चैलेंज आते थे। मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ इसका। या गॉट योर पॉइंट, चैलेंजेस फ्रॉम कम्युनिटी। सबसे मैं जब यहाँ से मैं जब दिल्ली में थी तो मैं आदि में रहती थी। आदि में एक हॉस्टल फैसिलिटी है, मैं वहीं रहती थी। यहाँ से जब जयपुर गई तो मुझे घर ढूंढना था। एंड घर ढूंढने में, जब मैं घर ढूंढ रही थी अपने लिए, तो I face challenge because I am a single mother. I face challenge because I have a son with disability. So there were various challenges. और ये चैलेंज मैंने हर बार फेस किया। फाइनली व्हेन आई रीच टू वन होम, जहां मैं 7 years बिताकर आई हूँ। वरना मैंने 2 दिन में भी घर बदला है, मैंने 10 दिन में भी घर बदला है, 3 दिन में भी घर बदला है। मैंने पहले 1 साल में 5 बार घर बदल लिया। Because there were people around who didn't like my son's voice. There were people around who didn't like
कि यहाँ पे कोई अकेला रह रहा है, इनके पास सर्वेंट रह रहा है 24 घंटे, अरे ये तो खतरे की बात है, हमारे ऊपर खतरा है, यू नो दैट काइंड ऑफ अ मेंटेलिटी। हालांकि राजस्थान बहुत वेलकमिंग है, बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे लोग हैं, बट स्टिल दैट काइंड ऑफ अ मेंटेलिटी वाज देयर हेयर ऑल्सो। वहां पे फिर अच्छा, वो चैलेंजेस चलते रहे, ऐसा नहीं खत्म हो गया। मल्टीपल टाइम मैं अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रही हूँ तो चैलेंज था कि आई रिमेम्बर देयर वाज वन टाइम कि मुझे कहा गया कि नहीं जी आप उतरो ट्रेन से। एंड ये डबल डेकर दिल्ली जयपुर की बात कर रही हूँ, और मतलब आई हैड टू टेक दैट इन अ बिग वे, और मुझे वो फाइट करनी पड़ी थी। एंड देन हाफ ऑफ द ट्रेन इज विद मी और हाफ ऑफ द ट्रेन वाज अदर साइड। एंड देन चैलेंजेस वर लाइक ट्रैवलिंग के चैलेंजेस थे कि कैसे आप ट्रैवल करो, बस में चैलेंज है, ट्रेन में चैलेंज है। तो दीज वर द चैलेंजेस जो मुझे कम्युनिटी से आ रहे थे। पर कम्युनिटी में मैंने एक चीज देखी है, आप कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हो उन चैलेंजेस को, दैट कैन चेंज द होल सिनेरियो। इफ आई एम टेकिंग टू माई हार्ट पर्सनली, मैं डेफिनेटली उसको रिस्पॉन्ड नहीं करूंगी, मैं उस पर रिएक्ट करूंगी। तो मैंने वो लेना बंद कर दिया, मैं थिक स्किन हो गई। तो अगर निर्भय बालकनी में खड़े होकर मस्ती में ऐसे आवाजें कर रहे हो, तो मैं भी उसके साथ ऐसे ही कर रही हूँ, मस्ती डांस कर रही हूँ, गाने गा रही हूँ, कर रही हूँ। तो लोग ऊपर देखते थे, दो चार बातें बोलते थे, चले जाते थे। ऊपर देखना, बातें करना बंद हो गया। दूसरा, मैंने नेबर्स के घर में जबरदस्ती घुसना भी कह सकते हो तुम उसको, मैंने घुसना शुरू किया, मैंने बातचीत शुरू की, मैंने उनसे दोस्ती बढ़ानी शुरू की। यू वोंट बिलीव, आज मेरे से ज्यादा निर्भय की फैन फॉलोइंग है। निर्भय को चाहने वाले अपने दोस्तों के यहाँ निर्भय को ले जाकर छोड़ना शुरू किया है। मैंने अपने रिलेटिव्स के जिस निर्भय को ले जाके छोड़ना शुरू किया कि आप रखो, जियो थोड़ी देर जियो, 1 घंटा 2 घंटा। I started doing it deliberately to make them understand that this child belongs to us. He is not an alien. I have learned with this child only. मेरे को भी नहीं पता था भाई, अदरवाइज मैं भी, मेरे लिए भी वो, अगर आपके लिए एलियन है तो मेरे लिए भी एलियन ही था। मैंने तो इससे पहले नहीं देखा था, पर मैं कर रही हूं ना, तो आप ही कर सकते हो। तो कम्युनिटी का जो चैलेंज है वो हर बार आता है। अभी आया, अभी जहां मैं रह रही हूँ, मेरे पड़ोसियों ने एक पूरी कॉलोनी भीड़ बना के आ गई कि जी आपके घर में कोई अनोखा बच्चा है, उसको देखने आए हैं। ऐसे टिकट लगता है ऐसे दो पहले। So I responded that way. I'm just laughing on it now, but कभी कभी गुस्सा भी आता था, ऐसी बात नहीं है। और मैंने गुस्सा करना बहुत पहले छोड़ दिया, लेकिन देन पत्थर भी फेंके उसके वहां के बच्चों ने, क्योंकि वो बच्चे वही देख रहे थे जो पेरेंट्स देख रहे थे। पर धीरे धीरे अभी मैंने बच्चों की दोस्ती करा दिया, बच्चे आते हैं मेरे नॉन में, खेलते हैं, कोई इशू नहीं है। एंड निर्भय को देखते हैं, हंसते हैं, ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है, धीरे धीरे दोस्ती भी हो जाएगी। तो कम्युनिटी का चैलेंज तब तक रहता है जब तक मैं उसको कैसे ले रही हूँ। द मोमेंट आई स्टॉप टेकिंग इट, रिस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स इट विद द पॉजिटिव एटीट्यूड, मेरे लिए कम्युनिटी चैलेंज खत्म हो चुका है। अभी तो कोई सामने से पूछता है, अच्छा इसके फादर, जैसे एक सवाल मैं बताती हूँ, मैं कहती हूँ आई एम सिंगल एंड आई एम वेरी हैप्पीली सिंगल। उसके बाद दोबारा कोई मुझसे सवाल नहीं पूछता। या आई एम हैप्पीली डिवोर्स्ड, नो वन आस्क्स एनी क्वेश्चन आफ्टर दैट, बिकॉज मैं मौका ही नहीं दे रही। सो आई एम रिस्पॉन्डिंग इन अ वेरी डिफरेंट वे। That's what is impacting the way community. पर yes, कम्युनिटी के चैलेंज है मनीष, और वो हमें मुझे लगता है हम पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड प्रोफेशनल्स के ऊपर तो है ही, to change that mindset. I think there were lot of takeaways from that. Thank you. Thank you. And not just for you, I think it is not just for you or for other parents who have special needs children. I think there is a lot of takeaway from that for any parent or anybody in the community. एक्चुअली पता है क्या होता है मनीष, मुझे जो लगता है, मैं पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूँ, मैं असल में दोनों नाव में हूँ, मैं पेरेंट भी हूँ, मैं प्रोफेशनल भी हूँ। इट्स इजी, मेनी थिंग्स, मतलब आई फॉर मी मेनी थिंग्स आर दैट इज अ गुड
question. I come to this question after this. What I'm saying, let me complete Yes, what I'm yes. saying. Please, please. मैं पेरेंट्स Please go ahead. Please go ahead. मैं पेरेंट्स से हमेशा एक चीज ये कहती हूँ, पहले जो मैंने अपने लिए अप्लाई करी, इसका जवाब इसमें से भी निकलेगा कि लव योरसेल्फ द मोस्ट, respect yourself the most, and be happy with yourself. If you are happy, if you live your life, you can give very beautiful life to your child. पर अगर मैं 24 घंटे उसकी डिसेबिलिटी को दिमाग में ओढ़ के रहूंगी, 24 घंटे उसके बारे में टेंशन में सोचती रहूंगी, मैं कभी भी अपने बच्चे को वो हैप्पीनेस नहीं दे सकती. तो मैं और निर्भय हम बड़े हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन है. ही इज नोन एज लाफिंग बुद्धा. मैं मस्त बिंदास रहती हूँ, यू नो दैट. तो अभी मतलब मैं जब ऑफिस आ जाती हूँ, मैं घर के बारे में 1% नहीं सोचती. और मैं जब मैं निर्भय को क्वालिटी टाइम देती हूँ, क्वांटिटी टाइम में मैं बिलीव ही नहीं. तो वो चीजों से ना पेरेंट्स अगर उस तरह से देखने लगे ना लाइफ को, ठीक है यार हो गया, आप कुछ तो कर नहीं सकते ना, जो हो गया वो है, अब उसके साथ कैसे मस्ती से जिया जाए, वो एटीट्यूड जिस दिन अपना लेते हैं ना, उस दिन राहें आसान हो जाती हैं, चीजें आसान हो जाती हैं, चश्मा बदलने की जरूरत है बेसिकली. So now come to your question. What does Arpita ji tell herself every time she looks into mirror? इसका एक बचपन की बात बताती हूँ पहले, फिर इस पे आती हूँ. Sure. Go ahead. मुझे बचपन, वो क्योंकि इसी से रह रहे, मुझे बचपन में बहुत चढ़ाया जाता था. मैं बहुत लीन थी, बहुत थिन, इतनी पतली थी कि लोग कहते थे खूब पारो तोड़ जाएगी. तो मैं ना बड़ी दुखी होती थी. मेरे सांवले रंग को लेकर भी चढ़ाया जाता था. मुझे कभी डांस में मेन रोल नहीं मिला था. तो मैंने उसके बाद मैंने क्या करना शुरू किया, सेल्फ कोपिंग स्ट्रेटेजी थी वो मेरी. मैं शीशे में देखती थी अपने आप को, मैं अपने आप को कहती थी मैं बहुत खूबसूरत थी, आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल वन, एंड मेरी ये अच्छा है, मेरे अंदर वो अच्छा है, यू नो दैट वे. आई डिडंट न्यू व्हाट आई वाज डूइंग टू माय सेल्फ. आई वाज अ चाइल्ड, और एक्चुअली आई वाज लर्निंग टू लव माय सेल्फ अननोइंगली. आज मैं जब शीशे में अपने आप को देखती हूँ, दो चीजें मैं हमेशा कहती हूँ. आई एम द मोस्ट पावरफुल, पीसफुल एंड लवफुल बीइंग ऑन दिस अर्थ, एंड आई लव माई सेल्फ एंड आई रेस्पेक्ट माई सेल्फ. तो ये जब मैं अपने आप से कहती हूँ तो मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरता है. तो मैं अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं अपनी सबसे ज्यादा फेवरेट हूँ. मैं जो कुछ करती हूँ सब अपने लिए करती हूँ. और उसके बाद मेरी लाइफ में बाकी लोग आते हैं, तो फिर निर्भय उसके बाद आता है, उसके बाद मेरा काम आता है, उसके बाद मेरे फैमिली मेंबर्स आते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स वगैरह, वो सब फिर बाद में आते हैं. पर मैं सबसे पहले अपने आप को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ. तो मैं अपने शीशे में देखकर हमेशा यही कहती हूँ कि आई लव माई सेल्फ एंड आई एम द मोस्ट powerful person. That's what I said myself. Sure. That was an amazing message. So how do you keep yourself so calm, so joyful, so laughing like you said? It's not always happen कि मैं हर समय काम रहूं. लेकिन चूंकि मैंने एज आई शेयर कि निर्भय के साथ, निर्भय अभी खेल रहा है, हंस रहा है, और हंसते हंसते उसको 108 फीवर. मैंने ये सिचुएशंस देखी हैं. हंसते हंसते ही वाज कोलैप्स. मैं वो सिचुएशंस देखी हैं. तो मैंने उन सिचुएशन में, और मैं अकेले होती थी या हेल्पर होता था या होती थी, तो देयर वाज नो वन हु कैन रिस्पॉन्ड टू दैट सिचुएशन अदर देन मी. आई लर्न फ्रॉम देयर to calm myself in most adverse situation. और मैं उस समय सिर्फ एक्शन लेती थी मनीष, मैं कुछ नहीं सोचती थी. मैं उठाती थी निर्भय को गोद में, सीधे बाहर ऑटो या जो भी मिला, एम्स, फोन कर दिया डॉक्टर को, एम्स बर्फ की सिल्लियों पे भाई साहब, ठंडे पानी में जो भी, फिर आईसीयू में, और फिर सीधे वेंटिलेटर पे. These were the situations I've seen so many times कि मैं चुप रहती थी, काम रहती थी. ये सब जो उसका आउटबर्स्ट होता था वो बाद में निकलता था. तो मैंने अपने आप को उस तरह से काम करना सीख लिया था एट दैट टाइम. पर क्योंकि उसका इम्पैक्ट बाद में होता था, देयर वाज सम negative impact of those kind of a calm technique, या those kind of a technique which I was using. So slowly, gradually, I started looking forward कि मेरी लाइफ का मिशन क्या है, मैं क्यों हूँ.
why I'm here and why everything is happening with me. So many things are happening with me. कुछ कुछ तो छोड़ दो भगवान जी. तो वो होता नहीं था, तो उस तरह से मैंने सर्च करना शुरू किया कि मैं या मेरी लाइफ का मिशन या मेरे बेटे की लाइफ का मिशन है क्या, हम क्यों हैं. तो आई स्टार्टेड, ये मैं पहले भी करती थी पर इतना नहीं था, तो मैंने बहुत सारे जो स्पिरिचुअल पाथ है उसको चुनना शुरू किया. तो बुद्धिज्म में घुसी, श्री श्री रविशंकर के कोर्स किए, सदगुरु सुना, बहुत बहुत सारी कुछ करती रही. करते 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 मैं मेडिटेशन में पूरी तरह घुस. आज की तारीख में अगर कोई चीज मुझे काम रखती है तो मॉर्निंग मेडिटेशन. मैंने पिछले 5-6 सालों से न्यूज सुनना, न्यूज़पेपर पढ़ना कंप्लीटली बंद किया हुआ है. मेरे घर में न्यूज़पेपर आता है, न्यूज चैनल भी चलता है, लेकिन निर्भय न्यूज चैनल सुनता है, निर्भय न्यूज़पेपर को पढ़ता है इन टर्म्स ऑफ कि वो उसका एक फेवरेट पास टाइम है, इसलिए न्यूज़पेपर आता है. तो मैं ना तो अपना दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से करती हूँ ना न्यूज से करती हूँ, क्योंकि न्यूज, द मोमेंट यू स्टार्ट हियरिंग नेगेटिव यू गेट इम्पैक्टेड. तो मैं अपना दिन की शुरुआत 10 वाक्यों से करती हूँ कि आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम मोस्ट पीसफुल, आई एम लवफुल and I am healthy and my whole family and life is protected by God's blessing, and this earth is protected by God's blessing. Everyone whom I know on this earth is protected by God's blessing. So I start my day with these lines. I listen some especially Sister Shivani को मैं morning में सुनती हूँ, गाड़ी चलाते समय भी listen good calming healing music एंड कोई भी इंस्ट्रूमेंटल रागा, कोई भी कुछ भी रात को भी सोते समय. प्लस मैं अपने फोन पर सुबह 8 बजे से पहले कोई मैसेज नहीं पढ़ती, ना व्हाट्सएप ना फेसबुक, नथिंग. 8 बजे के बाद होता है वो. तो सुबह 5 से 8 का टाइम मैं खुद को देती हूँ, 7:30 तक का. फिर उसके बाद रेडी होके फिर उसके बाद देखती हूँ. ऐसे ही रात को 10 बजे बंद. 10 बजे के बाद मैं फोन पर ये सब नहीं देखती. मैं फोन पर फिर वो अपना कोई भी ऐसा सिस्टर शिवानी का या कोई म्यूजिक लगा के छोड़ देती हूँ. दिस इज हाउ आई कीप माई सेल्फ काम इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन. और ऐसा नहीं होता है कि नहीं टूटती हूँ, होता है, बट मैं ये मानती हूँ कि बीइंग ह्यूमन वी ऑल हैव अ राइट टू ब्रेक डाउन ऑल्सो. वन कैन नॉट बी ऑलवेज स्ट्रॉन्ग. तो जो अभी निर्भय का लास्ट मई में इंसिडेंट हुआ था, एट दैट टाइम आई वाज ब्रोक डाउन कंप्लीटली. बट yes, but I could, और इतनी बुरी तरह भी नहीं टूटी थी कि मैं एक्शन नहीं ले पाई. मैंने एक्शन ले लिया था, पर yes, at that time I was at the point of breaking down. तो ऐसा भी होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, बट हाँ मैं संभल जाती हूँ, जल्दी संभल जाती हूँ. तो these things help me a lot. प्लस मैं पॉजिटिव लोगों से बात ज्यादा करती हूँ. अगर मुझे लगता है कोई व्यक्ति बहुत नेगेटिव है तो आई स्टार्ट कीपिंग द डिस्टेंस. फिल्टर करने. So one last question. Somebody has written something. Yeah, and I have sent you one last question. Yeah, please send the question. I have. A lot of parents with special needs children feel depressed or anxious. They might feel hopeless also. And I know this because a lot of times they do it. Yeah, I have. I have written it to you. Yeah. What would I suggest them from your own experience? Okay, मनीष, मैं ना सारे पेरेंट्स को, कोई भी डिसेबिलिटी है, हर पेरेंट को, क्योंकि मैंने अक्रॉस डिसेबिलिटी बहुत काम किया है. जो भी डिसेबिलिटी है वो हर व्यक्ति को अपनी लाइफ के लिए टफ लगती है. अपने बच्चे की डिसेबिलिटी हर पेरेंट को टफ लगती है, और वो टफ इसलिए लगती है क्योंकि वो डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल है, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं. पर मैं बहुत क्लियरली सारे पेरेंट्स से एक चीज बात करना चाहती हूँ कि हम हताश इसलिए हो जाते हैं कि हमारी एस्पिरेशन हमारे बच्चे को लेके जो होती है ना, वो ब्रेक डाउन हो जाती है. हमने एक सपने बना लिए होते हैं, उस बच्चे के चारों तरफ बहुत सारे, बच्चा पैदा नहीं होता उससे पहले तो नाम भी हो जाता है, कौन से स्कूल में जाएगा, क्या करेगा, क्या बनेगा, ये सब हम सोच लेते हैं.
हम पता नहीं कितनी प्लानिंग कर लेते हैं और जब वो टूटती है तो बहुत बुरी तरह से दुख होता है, इसलिए हम हताश होते हैं। हताश होकर बैठने से अगर सोल्यूशन निकलता है तो मैं कहती हूँ सबको हताश होकर बैठ जाओ, पर वो नहीं निकलता। बार बार खुद को कोसने से, भगवान को कोसने से निकलता है तो प्लीज डू दैट, वो नहीं निकलता। तो मेरा बहुत क्लियर सबको ये कहना है कि अब जो है न्यू नॉर्मल, हम एक वर्ड यूज कर रहे हैं आजकल कोविड के टाइम में, मैं कह रही हूँ आपके बच्चे के साथ जो आपकी लाइफ न्यू नॉर्मल है ना, कॉल इट अ न्यू नॉर्मल, डोंट से कि स्पेशल नीड, कॉल इट अ न्यू नॉर्मल, दिस इज अ न्यू नॉर्मल फॉर यू एंड यूज दैट न्यू नॉर्मल टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। नथिंग इज स्टॉपिंग यू। आपको जॉब छोड़ने की जरूरत नहीं है आपके बच्चे की वजह से, वो नहीं कह रहा आपको जॉब छोड़ो, आपको सिचुएशंस को अपने हिसाब से असेस करके और सिचुएशंस को देखने की जरूरत है कि कैसे कर सकते हो। मैं जॉब छोड़ दूं तो कुछ कर ही नहीं सकती, कौन खिलाएगा मैं, तो मुझे तो करनी है। तो अगर मुझे करनी है तो मुझे उसके बाद मुझे अरेंजमेंट्स करने हैं। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, डोंट थिंक इन दोज पैरामीटर ओनली। आपका बच्चा जिस तरीके से हैप्पीनेस शो कर रहा है ना, वो यूनिकनेस को एंजॉय करे। वो अगर हैंड क्लैप करके कर रहा है तो यू ऑल्सो डू हैंड क्लैपिंग, हु इज स्टॉपिंग यू। वो अगर जंप करके कर रहा है तो यू ऑल्सो जंप विद हिम, व्हाट इज स्टॉपिंग यू। क्या हम करते नहीं जब बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में होते हैं, हमारे कोई बहुत लॉटरी निकल जाए, या जैसे मेरा कुछ केबीसी में हो गया था, मैं तो कूद रही थी खुशी के मारे। तो डोंट वी डू ऑल दिस थिंग, वी ऑल्सो डू। तो स्टार्ट एंजॉयिंग द लाइफ विद योर चाइल्ड। आप उसकी जिंदगी में घुस जाइए, उसकी जिंदगी का हिस्सा बन जाइए और उसके चश्मे से दुनिया को देखिए। दुनिया बहुत खूबसूरत है और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो प्लीज 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 स्टॉप क्रिबिंग, स्टॉप कंप्लेनिंग। ये नहीं कर सकता से कर सकता वाले मोड में आ जाइए, जो कि हम लोग बहुत बिलीव करते हैं यहाँ पर कि कांट बी, ही कैन नॉट डू से कैन डू। द मोमेंट यू कम टू दिस शिफ्ट ऑफ माइंड, आपका बच्चा आपको जादू दिखाएगा। मेरे को, मैं निर्भय कुछ नहीं कर सकता। वेजिटेटिव स्टेज कहते हैं ना आपके मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, वो उस स्टेज में था। और आज मेरा बच्चा, मैं गारंटी दे रही हूँ 2025 में he will learn and I will eat. I will sit at home and he will learn for me. That is the challenge he is going to take and he will fulfill, because I believe he can do. And so that realistic होना जरूरी है और ऑप्टिमिस्टिक होना जरूरी है, होप होनी जरूरी है। और जितने भी मेडिकल फील्ड के लोग हैं, जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, जो भी सुने मुझे, मैं उनको एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, कभी किसी की होप को मत तोड़ना, कभी किसी की उम्मीद को मत तोड़ना, क्योंकि जिस दिन आप ये को तोड़ देते हो उस दिन आप एक जिंदगी को तोड़ देते हो, जिंदगी खत्म कर देते हो। तो डोंट डू दैट। Yeah. I think, Arpita ji, it was amazing and great. I have sent you a message saying thank you. You are not able to hear me clearly, but maybe you will be able to get the message. And what I wanted to say is that this unique series that I have started with you, I think we had a wonderful start today, because I think the whole objective was to reach out to the parents, give them some resilience, give them some hope, just by listening to a story. That's what my objective is. I don't think any therapist, any professional helps any parent, but the stories of even of all of us can definitely build something for them, something for their own mental health, something for their own strength.